بچی کا نام تقریر میں ہے، ان سے میری مراد شبنم خاتون ہے کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے بیانات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مہمان دی وقار، صدر جلسہ اور دیگر معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے نام سے ہم تقریر کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم تقریر کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، اس کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، خدا تعالیٰ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ دینی نسبت پر جمع ہونا بڑا ہی مبارک موقع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک لمحہ چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں موت کے متعلق سے کچھ عرض کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری بات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ہر بندی اور بندے کو اطلاع دی کہ موت کا بڑا العانی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا، اس اصول میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، یعنی ہر شخص کو کفن نصیب ہو یقینی نہیں ہے، لیکن موت کا آنا ہر شخص کے لیے یقینی ہے۔ انسان کتنے بھی مضبوط قلعے میں ہو، کتنے بھی عالیشان پائیدار محل میں فروکش ہو، جب اس کو موت آئے گی، اس کے راہ میں یہ قلعے، یہ پائیدار محل بھی حائل نہیں ہو سکتے، بڑی سی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت تم کو آ دبائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے موت کی تیاری کریں۔ یہ اصول بات یاد رکھیں، جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محموم، جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت فاسقہ و فاجرہ والی زندگی گزارے اور فاطمہ و رابعہ بصری جیسی موت آ جائے؟ ہمیں آج ہی سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ان کے چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور موت کی تیاری کا شکل یہی ہے زندگی۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے میری بہنوں، آپ نے میری ماں اور بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر یا مولی ہیں۔ جب ہمارا موت کا وقت آئے گا تو ہم موت کو ٹال نہیں سکتے، اس وقت موت کی تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ موت کی تیاری کا وقت یہی ہے زندگی۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے میری ماں اور بہنوں، آپ نے کتنے ہی معصوم بچوں کو، جنازوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کو موت کے سامنے عاجز ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اسے پتا چلتا ہے کہ موت کے کسی بھی عمر کے کسی بھی مرحلے ہماری موت آ سکتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ حکومت، بادشاہت، سلطنت، قوت بازو، ان میں سے کوئی بھی چیز موت کو نہیں ٹال سکتی۔ آپ ذرا غور کریں، اگر موت کو حکومت و بادشاہت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون و فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر وسارت سے ٹالا جا سکتا تو حمان کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دماغ کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو جالینوس و افلاطون کو کبھی موت نہ آتی۔ ان سب کے مننے سے یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں تقدیم و تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس وقت اس کا وقت معین آئے گا تو وہ ایک منٹ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، موت کی تیاری کر لو۔ مومن کی اصلی وطن جنت ہے، یہ دنیا وطن اقامت ہے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے ہیں، پھر ہمیں
अपने दामी वतन की तरफ कोच करना है। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी में लगे रहे। ये दुनिया की जिंदगी आजमाइश की जगह है। ये दुनिया आराम गाह नहीं, ये शेरगाह नहीं है, ये कयाम गाह नहीं, बल्कि इम्तिहान गाह है। मगर अफसोस कि हमने इसे चरागाह बना रखा है। हम समझते हैं खा पी कर जिंदगी गुजर जाएगी, बस बहुत है। हालांकि ये काफी नहीं है, बल्कि हमें उस इम्तिहान गाह में कामयाब होकर निकलना है। और कामयाबी की शक्ल यही है कि हम दुनिया में अपनी शख्सियत को संवारे, अपने किरदार को बेहतर बनाए, अपने अंदर इखलाक हमीदा, असवाज मुतहरात और साबिहात वाली जिंदगी को अपना नस्बुल ऐन बनाए। फिर देखिए हमारा जिंदगी कितना रोशन, हमारा मुस्तकबिल कितना तबानक होगा। हमें अपनी असली वतन जन्नत में जाने के लिए किसी तरह दुश्वारी का सामना नहीं होगा। और जब हमारी मौत आएगी तो हमारी मौत पर जमीन व आसमान भी रोएगी। हदीस पाक का मफहूम है, जब कोई नेक इंसान मर्द या औरत दुनिया से फौत होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं और वह रुमाल उसके सीने पर रखकर उसकी रूह को इतनी आसानी से कब्ज कर लेते हैं जिस तरह मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। उसके बाद मुर्दे की कफन दफन की तैयारी होती है। रवायत में आता है कि आसमान के वह दरवाजे जहाँ से रिस्क उतारा जाता था उसकी मौत पर रोते हैं। जमीन के वह हिस्से जहाँ वो बैठ कर खुदा ताला की इबादत करता था उसकी मौत पर रोते हैं। उसके बाद मुर्दे की कफन दफन की तैयारी होती है। रवायत में आता है कि जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ चलता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन माओ मेरी बहनों, ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हम नेक होंगे, अल्लाह ताला के नेक बंदी और बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया में ए दुनिया वालों क्या फुले फुले फिरते हो, पहनोगे एक रोज कफन, बदलोगे फिर हस्ती का चोला। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। दोस्तों, इस जिंदगी का कुछ भरोसा और एतबार नहीं। अभी एक शख्स है और थोड़ी देर में पता लगा है ही नहीं। यह पत्ता की नोक पर रुका हुआ पानी का एक कतरा है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई उसका मकाम नहीं। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी को पायदार न समझे, उसका कुछ एतबार नहीं। कब उसका दुनिया से चलने का बुलावा आ जाए और उसे खबर भी ना हो। जरा खौफे गफलत से होशियार रहो, न गाफिल हो इतना खबरदार रहो। लिहाजा ऐ भाइयों, अब भी वक्त है। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ और नसीहत करती हूँ, यह जो कुछ कहा जा रहा है वह सब तेरी ही खैर ख्वाही, हमदर्दी, कब्र मौत की सख्ती, निज़ा की तलखी, कब्र की तन की व तारीकी, पुल सिरात पर से आसानी, अज़ाब जहन्नम से निजात व खुलासी, दाखिलाए जन्नत जो हमेशा हमेशा के लिए आराम व राहत और अल्लाह ताला की रज़ा का मकाम है, और उसके मिलने और अल्लाह ताला के राज़ी और खुश करने के लिए कहा जा रहा है, या उसने नहीं कहा और लिखा जा रहा है। ना ही इस किताब के लिखने का यह मंशा और मकसद है कि उससे दुनिया और दुनिया का माल व दौलत कमाया जाए, या उससे कोई नाम आरो या अपनी शोहरत मकसूद हो। अल्लाह ताला ऐसे नियत और रियाकारी और दुनिया की मालदारी से महफूज रखे और उसकी मक्कारियों, दिल फरेब और उसके फितनों से बचाए। आमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया वल आखिरह। खुदारा मेरी इस नसीहत के पढ़ने सुनने के बाद तो अपने आप को और अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। जो कुछ तुझे करना है बस अभी कर ले, उसमें तेरी बेहतरी है। अभी तुझे मोहलत है, अभी तू तंदुरुस्त है, अभी तू जवान और सेहतमंद है, अभी तुझे फुर्सत है, अभी तेरे हाथ पाँव, दिल व दिमाग और सब आज़ाए बदनी सही सलाम है। उसकी कुव्वत खत्म, वक्त और गुजरने बुढ़ापा आ जाने के बाद फिर तुझसे कुछ ना होगा। जो कुछ होगा अभी जवानी और सेहत में होगा, बुढ़ापे और बीमारी में फिर कुछ ना होगा। फिर सिवाय वाबिला और हसरत के कुछ हाथ ना आएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मासरतुल आखिरा, यानी दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा कोई यहाँ दुनिया में बोएगा वैसा आखिरत में काटेगा। याद रख, बुढ़ापा अनकरीब तुझ पर आने को है। तेरा
बुढ़ापा अनकरीब तुझ पर आने को है। उस वक्त तुझको चलना फिरना भी दोबारा मुश्किल हो जाएगा। तेरी जिस्म ताकत और हुस्न रुखसत हो जाएंगे। तेरी कोई वक़ार न रहेगी। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजले तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। अरे क्या तू देखता नहीं कि जब गधा बूढ़ा हो जाता है और बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता तो उसे घर से बाहर जंगल की तरफ निकाल दिया जाता है, फिर उसकी कोई कद्र व कीमत नहीं रहती। लिहाजा ये हश्र तेरा भी अनकरीब होने वाला है। तेरे घर वाले बेटे पोते ही करेंगे जिनके पीछे तूने अपनी तमाम जिंदगी खोई। गुनाहों की घड़ियां सर पर ला दे, जिनकी अपनी खून पसीने कमाई खर्च करके लिए ऐ की डिग्रियां हासिल कराएं और दीन सिखाना तेरे लिए आर और शर्म हया का मकाम और वक्त बर्बाद करना था। खुदा के नाम पर देने के लिए तेरे पास एक पैसा न था, लेकिन फर्जंद को डिग्रियां हासिल कराने और उनकी शादी में नाच गाना और लानत की रस्मों के लिए तूने पैसा तो पैसा सभी कुछ खर्च कर दिया। अरे दीन मोहम्मदी को खोने और हकीर समझने वाले कब्र तो इस दुनिया ही में भुगत कर मरेगा। आखिरत तो आखिरत तुझे मरते ही, दम निकलते ही और कब्र में पहुंचते ही पता चल जाएगा कि मैंने दुनिया की जिंदगी में रहकर क्या कमाया और क्या खोया। इरशाद बारी है, कल्ला सौफ तअलमुन सुम्मा कल्ला सौफ तअलमुन। बस ऐ गफलत भरे इंसान खबरदार हो जा, उठ जाग और खुदा से दिल लगा, उसके हुक्मों पर चल, शरीयत मोहम्मदी का दिल व जान से पाबंद हो जा। वहाँ की बना यहाँ की छोड़, दीन की बना दुनिया की छोड़। अपनी कमाई से आखिरत का सामान खरीद कर ले, जो कल वहाँ तेरे मरने के बाद काम आ सके। कब्र हस्र में सुख और चैन नसीब हो और अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है कामयाबी। हर इंसान कामयाब होना चाहता है। अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरे बंदे कामयाब हो जाएं। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में कमो 20 लाख नबी भेजे कि बंदों को कामयाब होने का रास्ता बतलाएं, क्योंकि कायनात को अल्लाह ने बनाया और बनी हुई चीज कुछ बनता नहीं। उसकी कामयाबी और नाकामी किस चीज में है वो बनाने वाला ही जानता है। इसलिए मखलूक की रहनुमाई के लिए हर दौर में अल्लाह ने नबियों को भी भेजा और किताब भी दी। सब नबियों ने दुनिया में आकर एक ही दावत दी, एक अल्लाह को मानो और एक अल्लाह ही की मानो, कामयाब हो जाओगे। यानी ईमान और आमाले सालिह इख्तियार कर लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और आमाले सालेह किए मैं उनको बालुत जिंदगी अता करूंगा। दूसरे जगह इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे जिक्र से हुक्म से एराज करेगा हम उनकी जिंदगी तंग कर देंगे और कयामत में अंधा उठाएंगे। इससे पता चलता है कि जिसकी जिंदगी में दीन होगा, असबाब हो या ना हो, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत की लामहदूद जिंदगी में भी कामयाब करेंगे, जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को कामयाब किया। और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा अल्लाह उसे दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे, जैसे अबू जहल, अबू लहब, कैसर व कसरा को नाकाम किया। दीन कहते हैं अल्लाह के हुक्मों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करने को अल्लाह की रजामंदी के लिए। मखलूक की हयात के लिए जिस तरह अल्लाह ने आसमान से पाक और साफ पानी उतारा, इस तरह इंसान की कामयाबी के लिए आसमान से पाक और साफ दीन उतारा है। जिस तरह बगैर खाए पिए अमूमन हलाकत होती है, उस तरह बगैर दिन के यकीनन नाकामी होगी। इसलिए जिस तरह बेदीन से इंसान नाकाम होगा उस तरह अधूरे दिन से भी नाकामी होगी। इसलिए अकाइद, इबादत, इखलाक, मामलात और माशरत के तमाम शोबों का पूरा दीन हमारी जिंदगी में लाना जरूरी है। दीन से कामयाबी यकीन के बेकदर मिलेगी।
यकीन से दीन से कामयाबी यकीन के बेकदर मिलेगी। दीन से कामयाबी यकीन पैदा करने के लिए दावत शर्त है। दावत से हमारे अंदर यकीन पैदा होगा। अमाल के करने के बाद भी कामयाबी यकीन के बेकदर मिलेगी। यकीन यानी ईमान। अल्लाह की कुदरत उस वक्त तक हमारा साथ नहीं देती जब तक अल्लाह का गैर हमारे दिलों से निकल नहीं जाता, और अल्लाह का गैर हमारे दिलों से तब तक नहीं निकलेगा जब तक अल्लाह का गैर हमारे दिलों से अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हम उसकी दावत न दें। ईमान या अमाल की दावत दे तो उसकी हकीकत को सामने रख कर दावत दे। माहौल देखकर या किसी की सतह देखकर या सामने वाले की इस्तादाद देकर दावत न दें। अपने यकीन की तब्दीली की नियत से दावत दे। इस तरह दावत देंगे तो दावत में वह तासीर पैदा होगी जिससे अपना यकीन भी बनेगा और दूसरों को हिदायत भी मिलेगी। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, तुम मेरे रास्ते की जिद्दोजहद करो, मैं तुम्हें जरूर बाजरूर हिदायत दूंगा। शुक्रिया।